Good morning, student. Today I am discuss class 7, chapter 2, Parliament. Okay. I am talk about Parliament. First point of Parliament. Listen carefully. Parliament of the India, known as the Sansad, is the supreme law-making institution. It has two houses, first Raj Sabha and the second Lok Sabha. Parliament consists of the three part or three organ. First, President. Parliament make the three organ. First, President. Second, Lok Sabha and third Raj Sabha. Okay. So Indian Parliament, known as the Sansad, is the supreme law making bodies. Supreme law making body in India. And the first two house, first Lok Sabha and Raj Sabha. Okay. Second point, Raj Sabha is the council of the state, known as the council of the state, or upper house, or permanent house. Anyone Raj Sabha is the council of state with the total strength of the 245 member is the chair by Vice President of India. Is the present Vice President of India Venkaiah Naidu. Okay, total strength 245, not more than 250. Okay, Raj Sabha is the upper house or permanent house. Permanent house. Raj Sabha never dissolve. कभी भी ये भंग नहीं हो सकती है. नेक्स्ट, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल. लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल with the total member 545, not more than 550. It is the president over the speaker. Present speaker our parliament Om Birla. Okay, Om Birla. Lok Sabha known as the unpermanent house or lower house. Lok Sabha is the unpermanent house and lower house. Okay. ओके स्टूडेंट, तो हम पार्लियामेंट यानी संसद की बात कर रहे थे. संसद एक सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, अर्थात संसद जो कानून पास करती है वह पूरे भारत में लागू होता है. और इसके तीन अंग हैं, यानी ये पार्लियामेंट तीन लोगों से मिलकर बनी होती है, या इसको कह सकते तीन ऑर्गन से तीन अंग है. फर्स्ट है प्रेसिडेंट, सेकेंड है लोकसभा, थर्ड है राज्यसभा. राज्यसभा को हम परमानेंट यानी अस्थाई हाउस कहते हैं, क्योंकि कभी डिसॉल्व यानी भंग नहीं होती है. लोकसभा ये अनपरमानेंट है और ये कभी भी भंग यानी डिसॉल्व हो सकती है. और इसके राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं उनको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, जिनकी संख्या 245 है. और 250 से ज़्यादा नहीं हो सकती है. और इसका जो चेयरमैन होता है, यानी कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वह भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं. और लोकसभा ये हो गया राज्यसभा का. लोकसभा हाउस ऑफ द पीपुल विद द टोटल मेंबर, यानी इसके जो टोटल मेंबर होते हैं लोकसभा के वो 45. हाँ, लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं या अनपरमानेंट हाउस. ये कभी भी डिसॉल्व हो सकती है यानी भंग हो सकती है. और इसके जो स्पीकर होते हैं यानी प्रेसिडेंट इसके जो अध्यक्षता करते हैं यानी प्रेसिडेंट जो करते हैं, उनका नाम ओम बिरला है. भारत के जो भी स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के चेयरपर्सन होते हैं.
According to Act or Article 79 of the Constitution, there will be a president and two assembly in the parliament, which assembly of the Rajya Sabha and the Lok Sabha. It means that Article 79 mention the definition of parliament, how to do work, how to do work and manage the whole administration, whole power, whole law makings in India. ओके, आर्टिकल 79 अर्थात अगर हम देखा जाए तो आर्टिकल 79 में भारत के संसद यानी जो पार्लियामेंट है वो लॉ मेकिंग बॉडी है और एक कानून बनाती है। और आर्टिकल 79 में ये मतलब व्यवस्था किया गया है कि इसको पावर दिया गया है या इसके विषय में बताया गया है कि भारत में एक पार्लियामेंट होगी और उसी के अनुसार हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे यानी हमारे जो प्रतिनिधि होंगे बोथ ऑफ हाउस लोकसभा एंड राज्यसभा है मेकिंग द लॉ इन द इंडिया। ओके, कि कानून बनाएंगे और उसी कानून के अनुसार पूरे देश में शासन प्रशासन यानी लॉ और जो रूल्स हैं वो चलेंगे। ओके, और पार्लियामेंट में जो लॉ मेकिंग बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। और कार्यपालिका का जो हेड होता है भारत का प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके अनुसार ये वर्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट, role of the parliament. I am talk about the role of the parliament. You listen carefully and make the note. Role of the parliament. Indian parliament is the expression of the fact that people of India have principle of democracy. Principle of democracy express the faith या expression of the faith the people of India have to principle of democracy. These are participation by people in the decision making process and government by consent. The parliament in our system has immense power because it is the representative of the people. अर्थात अगर हम इसके रोल की बात करें तो इंडियन पार्लियामेंट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फैथ, अर्थात भारत के जो भी नागरिक हैं वो अपने भाव विचार को एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उनके द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं संसद में जाते हैं, बैठते हैं और भारत के लिए कानून बनाते हैं, जनता के प्रति जनता के लिए कानून बनाते हैं और यही लोकतंत्र का प्रिंसिपल सिद्धांत है। These are पार्टिसिपेशन बाय पीपुल इन द डिसीजन में, क्योंकि ये जो डिसीजन मेकिंग होते हैं यानी कि जो निर्णय लेते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, निर्णय लेते हैं, कोई कानून को पास करते हैं वो बिहाफ ऑफ द पीपुल जनता की ओर से आते हैं और प्रोसेस बाय गवर्नमेंट बाय कंसेंट, जिससे सरकार अपना कार्य करती है। पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर, पार्लियामेंट को अत्यधिक शक्तियाँ दिया गया है क्योंकि अत्यधिक शक्तियाँ दिया गया है क्योंकि पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग बॉडी कहा जाता है और यहीं से कानून बनता है। कानून जैसे आप अभी देख रहे हैं जीएसटी था या अभी आप कोरोना को लेकर आप देख रहे हैं कि कानून है, तो ये सब पार्लियामेंट या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, वो काम करते हैं। इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल, ये हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं लोकसभा से, राज्यसभा से, लोकसभा से 545 हैं, राज्यसभा से 245 मेंबर्स हैं, वह इलेक्ट होकर या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनमें इलेक्ट होते हैं। इलेक्शन टू पार्लियामेंट आर held in a similar manner as they are for the state legislatures. For example, जैसे हम जैसे यूपी है, बिहार है, वहाँ पर हम चुनाव करते हैं एमएलए का, उसी प्रकार हम केंद्र में यानी कि केंद्र लेवल हम एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हम इलेक्शन करते हैं।
द लोकसभा इज द यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है बाबू वो 5 साल के लिए होता है। हाँ, लेकिन एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि राज्यसभा का जो ड्यूरेशन पीरियड है वो है 6 ईयर्स, और उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो 2 साल में, यानी 1/3 जो मेंबर होते हैं वो अब 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। लेकिन जो हमारी पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट का जो हमारा जो लोअर हाउस यानी लोकसभा है वह उसका कार्यकाल 5 ईयर्स के लिए होता है। द कंट्री इज द डिवाइडेड इनटू नंबरस कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो पूरे भारत में इसकी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है तो 545 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 545 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, यानी कि उसको निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। और उस निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने एमपी बोलते हैं, तो एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वहाँ पे एक एमपी का इलेक्शन होता है। तो अगर देखा जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो बनाई जाती है, यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर जो निर्माण होता है वह 5 to 7 लाख पीपुल पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, यानी कि एक एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। तो ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसीज इलेक्टेड 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट के लिए हम सेंड करते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हमारे रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं, यानी प्रतिनिधि कहलाते हैं, और वो जाकर संसद में सिटिंग यानी बैठते हैं और हमारे लिए जो भी नियम कानून होता है वो बनाते हैं और जनता के हित में काम करते हैं। तो द कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। जैसे फॉर एग्जांपल जो कैंडिडेट होते हैं, आप जिसको पसंद करें, जैसे आपको बीजेपी के मेंबर पसंद है या कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव पसंद है, अकॉर्डिंग टू भारत के जितने भी लोग हैं वो उसके अनुसार मतलब कि हम उसका इलेक्शन करते हैं, वोटिंग करते हैं। अगर हमको जो पसंद है या जो हमको नेता पसंद है उसका हम इलेक्शन यानी वोट कर देते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट।